So hi everyone, as you know, RBI Grade B 2024 Phase 2 cutoffs have been released, and I know अब तक में आपने cutoff देख ली होगी. So I am not here to tell you just the cutoffs of 2024 Phase 2 exam. I am here to tell you, I am here to discuss, I am here to analyze the previous 4 years cutoff, the Phase 2 cutoffs of RBI Grade B, and I am here to tell you what should be your target score for the year 2025. Now a lot of you will say भाई पहले फेज 1 तो निकल जाने दो, क्यों हमें फेज 2 के लिए वीडियो बना के परेशान कर रहे हो. सो गाइज फॉर दैट आई हैव टू व्यूज. पहला ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए, प्लीज टेक एन एग्जिट, नो वरीज, बट in my opinion you should watch this video. Why? Because you not only have to clear the phase 1, you have to also clear the phase 2 as well, and for that you need to prepare from today. ऐसा नहीं है कि आप फेज 1 या नोटिफिकेशन के बाद फेज 2 के बारे में पढ़ोगे कि ठीक है यार फेज 1 निकलेगा तब पढ़ेंगे. सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बोथ द फेजेस, फेज 1 एंड फेज 2, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ओनली. ठीक है, चलिए. So let's begin with the discussion. First of all, I will be telling you the last 4 years cutoff starting from 2021. Now, why I am starting it from the year 2021? Because in 2021 the RBI changed the pattern. जो कि अभी करंट पैटर्न है वो 2021 से चल रहा है. So we will be discussing the cutoff since 2021 only. Right. So सबसे पहले अगर मैं 2021 की बात करूं, so in 2021, the phase 2 cutoff was 187.75 and the final cutoff was 252.25. It was quite higher than 2022, 23 and 24. Why? Because this time the pattern was changed for the very first time and the descriptive paper in phase 2 and also the objective was quite easy. ठीक है, जो descriptive papers थे तीनों ही, ठीक है, इनफैक्ट ESI और FM का जो descriptive वाला portion था that was too easy. ठीक है, इसलिए ये जो cutoff थी ये थोड़ी सी ज्यादा थी, and also the vacancies were also very high this year, right? That's why the cutoff was quite higher, 187.75 for phase 2 and final was 252.25. Then in 2022 the cutoff went down right away from 187 to 171.25, right, for phase 2, and after phase 2 यानी कि after interview the final cutoff was 234.50, right? ये बात सही है. उसके बाद अगर if I look at the cutoff of 2023, so phase 2 cutoff was 169 and the final cutoff was 229, right? And और अब मैं अगर 2024 की बात करूं, so it is quite higher. The phase 2 cutoff is quite higher than the year 2023. In 2023 you can see it was 169 and in 2024 it is 173.5, ठीक है, which is 4.5 marks higher than 2023. But अगर आप फाइनल कट ऑफ की तरफ नजर डालोगे, so it is 229 in 2023, while in 2024 it is 226.75, which means approximately 3 marks less. ठीक है, approximately 3 marks less, मतलब 2.25 marks less. ठीक है. Now if you look at this trend starting from 2022, अब देखो 2021 को मैं ट्रेंड की तरह इसलिए नहीं पकड़ूंगा because in that year the examination was very easy, right? In 2022, 23 and 24 the examination was quite on the same line, and in fact in 2024 the examination was very tough, right? 2024 का जो एग्जाम था बहुत टफ था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, मैनेजमेंट में भी फाइनेंस में भी, राइट? The questions were really tough. And in 2023 also the descriptive portion also was really tough, especially if I talk about the ESI descriptive बहुत ही ज्यादा टफ था. ठीक है. So अब if I talk about the trend for the year 2022, 23 and 24, ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि जो कट ऑफ है वो कितनी रह रही है. अगर मैं फेज 2 की बात करूं, if I talk about phase 2, the cut off range is 170, and if I talk about the final cutoff, so that is approximately 230. कभी 234 है, कभी 226 है, कभी 229 है, तो एवरेज पकड़ लेते हैं 230, अप्रोक्सीमेट एवरेज पकड़ लेते हैं 230 का. ठीक है. Similarly for phase 2, let's have an average of 170. ठीक है. तो ये तो हो गया बेस्ड ऑन द पास्ट 3 years ट्रेंड. ठीक है. तो अभी हमें कट ऑफ रेंज पता चल गई है कि फेज 2 के लिए कितना है 170 और फाइनल कट ऑफ रेंज कितना है 230.
अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारी और चीजें भी मैटर करती हैं। अगर 2023 में ईएसआई का पेपर, ईएसआई डिस्क्रिप्टिव पेपर डिफिकल्ट था, ठीक है, तब भी कट ऑफ कितनी गई 229 बिकॉज वैकेंसी वर 200 प्लस। अब यहाँ पे क्या हुआ, पेपर और ज्यादा टफ हुआ, पेपर और ज्यादा टफ हो गया, ठीक है। इन 2024 पेपर दी एंटायर ईएसआई एनएफएम ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव सब कुछ ही बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन तब भी जो कट ऑफ है वो उसके आसपास ही रही। व्हाई? बिकॉज द वैकेंसीज वर वेरी लेस। व्हाई? बिकॉज द वैकेंसीज वर वेरी लेस, ठीक है जी, बहुत कम थी वैकेंसी, इसलिए कट ऑफ तब भी उसके आसपास ही रही। सो इसका मतलब ये बात तो तय हो जाती है दैट वैकेंसी अब 2025 में हमें पता है, in 2025 we know the vacancies will be around this only, 2 digits में रहेगी वैकेंसी, 60-70 ही रहने वाली है, ठीक है। सो अब जो कट ऑफ की रेंज होगी वो भी वही होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। अब अगर मान लो डिफिकल्टी लेवल कम हो गया तो फिर कट ऑफ ऊपर जाएगी, पर डिफिकल्टी लेवल अगर सेम रहा तो कट ऑफ लगभग इसके पास ही रहेगी। नाउ कट ऑफ रेंज हो गई 170 फेज 2 की, और फाइनल कट ऑफ रेंज हो गई 230। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ठीक है भाई 170 यानी कि अगर 60 मार्क्स भी मैं ले आया तीनों पेपर में तो मेरा काम हो गया। नहीं भाई नहीं, नहीं। Why? Let me tell you. Let's say you have scored 170. In fact, let's say आप 175 आपने स्कोर कर दिया तीनों मार्क्स मिला के। अब टू गेट अप टू 230, how much marks do you need? 25 plus 30, 55. And trust me, my dear friends, 55 marks out of 75 in RBI interview is like getting to the moon. ठीक है, आरबीआई के जो पैनलिस्ट हैं उनकी आदत है, उनका एक रेपुटेशन है दैट दे ऑलवेज गिव लोअर मार्क्स इन द इंटरव्यू। तो 55 मार्क्स अगर आप सोच रहे हो कि आप इंटरव्यू में ले आओगे आसानी से, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों के नहीं आते, आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर 55 मार्क्स अगर आप सोच रहे हो कि आसानी से आ जाएंगे, सो इट इज नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स। सो अब 175 पे भी काम नहीं होगा, 170 पे भी काम नहीं होगा, यू हैव टू एटलीस्ट टारगेट अ स्कोर ऑफ 200 मार्क्स इन फेज 2, ठीक है। 200 मार्क्स आप टारगेट करोगे तो हो सकता है आप कहीं 190 के आसपास आके गिरो, ठीक है, वो भी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 200 आप टारगेट करोगे तब जाके आपके 190 आएंगे, एंड देन you have to score around 40 to 50 marks, 40 marks in interview and then आपका काम बनेगा, ठीक है। और फाइनल कट ऑफ में भी आपको 230 टारगेट नहीं करना है भाई साहब, आपको कितना टारगेट करना है 250 टारगेट करना है एटलीस्ट, तब जाके आपका काम बनने वाला है। ऐसा नहीं है कि अरे 170 ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है मैं तो आराम से ले आऊंगा, आपको 200 टारगेट करना है। एंड ट्रस्ट मी 200 इज अ डुएबल स्कोर। व्हाई? बिकॉज आपको लेस देन 70 मार्क्स लेके आने, ठीक है, आपको लेस देन 70 मार्क्स लेके आने इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स व्हिच इज क्वाइट पॉसिबल। आई नो इट्स नॉट दैट इजी। अब इजी तो देखो यार पूरा एग्जाम ही नहीं है ना, अब आपको और इतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी, इतना सब कुछ मिलेगा, आसानी से कैसे मिल सकता है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप 70 लेके आओ, आई एम सेइंग दैट यू शुड टारगेट 70 मार्क्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। इट विल बी अराउंड 210, नॉट अराउंड एग्जैक्ट 210। तो आप कहीं 190 से 200 के बीच में जाके गिरोगे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी होती है एफिशिएंसी और डिस्क्रिप्टिव में, तो हमें पता भी नहीं होता कि कितने नंबर मिलेंगे, right? So this is the target score that you should be targeting for the year 2025. So start preparing from today, start working like you have to start studying, start your studies like you have to score 210 marks or maybe 200 marks in the phase 2 examination. Only then you will be able to clear the cutoff for RBI grade B 2025, and this is for यूआर कैटेगरी ऑफ कोर्स। जो बाकी कैटेगरी के लोग हैं वो अकॉर्डिंगली अपने मार्क्स को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। Alright guys, that's all which I wanted to discuss in this particular video. Thank you very much. I wish you all the best for the 2025 examination. Goodbye, take care, and God bless.